Hello everyone. We have the next chapter, lesson number 7, Internet Services in the sequence in your second semester. So, in this chapter we will learn Introduction to Internet, ways to connect to Internet, popular services on the Internet, email, using email and net equates. So first of all, what is internet? In the previous classes you have already learned what is internet. Internet is one of the best technologies gifted to mankind. It is brought the entire world closer. It stands for International Network. It is the largest computer network connecting millions of computers. So basically what is internet? It is a international network of computers. A network. Now the question is, what is network? A network is group of two or more computer systems linked together to form a global network. Here I can give you the example of road network. You all are very well known the road network. The main road connects various cities. If you have to go somewhere, you have to follow the proper path so that you can reach your required destination. So for this, the road that are connecting, which are connected to each other, that is called road network. Similarly, when millions of computers all over the world connected to each other, then they form a group of computer network. That network is called internet. Clear? The invention of the internet has transformed our living. It has revolutionized the whole world and made computers the most effective communication tool. आप सभी जैसे जानते ही हो कि इंटरनेट की इन्वेंशन ने वर्ड को क्या कर दिया है, क्लोज ला दिया है, और इट इज नाउ बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल. कम्युनिकेशन मीन्स टू हैव कन्वर्सेशन, मीन्स बातचीत का सबसे कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो सबसे इफेक्टिव आजकल कौन सा है? इंटरनेट. कम्युनिकेशन हैज गिवन रैपिड ग्रोथ टू बिजनेस वर्ल्ड वाइड. कम्युनिकेशन से बिजनेस ग्रोथ हुई है. इंटरनेट इज अ कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग टूल दैट नॉट ओनली कंटेन्स ह्यूज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन but also provides new ways to interacting and connecting with people. इंटरनेट की हेल्प से हम बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक पे गेन कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके गेन कर सकते हैं कि कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है और कनेक्ट करना है. नेक्स्ट इज, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट, बट हाउ टू कनेक्ट विद द इंटरनेट. सो वी विल लर्न नाउ. To connect you to your computer with internet, you need a modem, a telephone line and an internet connection. So basically you need three important factors, that is modem, telephone line, internet connection. So one by one we will discuss what are these. Modem. Modem stands for modulator and demodulator. Its full form is modulator, demodulator, and short form we called it modem. बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच अलाउज अ कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन लाइंस. जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सेंड और रिसीव करना. और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? टेलीफोन लाइंस के थ्रू. Modulator converts digital information of a computer to analog mode at the transmitting end, and the demodulator further converts back the analog signal to digital at the receiving end. So basically the function of modem is to digitalize the information by changing it analog to digital mode or digital to analog mode. So there are two types of modems further, internal modem, external modem. इंटरनल मॉडम एक ऐसा डिवाइस है दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, जो पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू वन ऑफ द स्लॉट्स ऑफ द मेन बोर्ड. जो मेन मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, उसमें ये क्या होता है? इंसर्टेड होता है कार्ड की फॉर्म में. एक्सटर्नल मॉडम. एक्सटर्नल मॉडम इज अ मॉडम दैट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द सीपीयू
एज द नेम इंडिकेट, जैसे नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल मीन्स जो आउटसाइड इंस्टॉल किया जाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, ये एक बॉक्स की फॉर्म में होता है। दैट इज नॉर्मली कनेक्टेड टू द USB पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ modem has indicator light that display the status of the modem, as you can see in the picture at your home. Those who are using the Wi-Fi, they have seen this modem. Clear? The next is PC card modem. Is specifically designed for laptops and handheld devices. जो लैपटॉप्स होते हैं या फिर जो handheld devices होते हैं उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। It is similar to the size of a credit card. आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड देखे ना अपने पेरेंट्स के, सिमिलरली ये उस साइज का होता है। एंड फिट्स इनटू द PC कार्ड स्लॉट्स और द नोटबुक एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस। नोटबुक मीन्स जो जैसे आपके टैब्स वगैरह होती हैं। नो केबल रिक्वायर्ड, कोई वायर नहीं चाहिए अदर देन द टेलीफोन लाइन कनेक्शन। बट क्या नेसेसरी है, टेलीफोन लाइन कनेक्शन होना चाहिए। वन कैन रिमूव दिस मॉडम व्हेन इट इज नॉट नीडेड। आप रिमूव भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। द नेक्स्ट इज टेलीफोन लाइन। A telephone line is a medium that is used to connect the computer to an internet service provider. टेलीफोन लाइन एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, किससे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो अभी बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ये होती है कंपनीज, जैसे कि BSNL, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब आपको कंपनीज पता है। आपने अलग अलग कंपनीज के कनेक्शन ले रखे होते हैं। ये कंपनीज आपको क्या करती हैं, आपसे पैसे लेती हैं और आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देती हैं, ठीक है। एन इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट कनेक्शन की सर्विस है ये आपको एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि उस कंपनी को कौन सी कंपनी से रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन एक्सचेंज फॉर अ फी। डाटा पैक का जो चार्जेस होते हैं ना, उसके पैसे लगते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू असेस इंटरनेट अनलेस यू सब्सक्राइब फॉर अ कनेक्शन विद एनी ISP। जब तक आपने किसी कंपनी का कनेक्शन नहीं लिया हुआ तब तक आप इंटरनेट असेस नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले है डायल अप कनेक्शन। Dial up connection requires the user to link their phone line to a computer in order to access the internet. Means phone line, it requires the user to link their phone line to the computer. Means आप अपनी phone line को कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे to access the internet. Next is broadband connection. As the term suggests, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दिस कनेक्शन कन्वर्ट्स वाइड बैंडविड्थ विच प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम्स. इट इज फास्टर देन द फर्स्ट कनेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डायल अप कनेक्शन. यूजिंग ब्रॉडबैंड यू कैन शेयर वीडियोज, डाउनलोड म्यूजिक, प्रोग्राम्स, फोटोज विद इन नो टाइम. मीन्स इसकी जो ब्रॉडबैंड की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है. थर्ड वन इज केबल टीवी कनेक्शन, केबल टीवी कनेक्शन. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू केबल टीवी लाइन्स. क्लियर, आपको केबल टीवी लाइन्स का पता ही है. इट यूजेज अ केबल मॉडम विच प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट. इसकी भी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है. फोर्थ वन इज सैटेलाइट कनेक्शन. इन एरियाज वेयर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इज नॉट येट अवेलेबल. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं होती, सैटेलाइट कनेक्शंस आर यूज्ड. वहाँ पे सैटेलाइट कनेक्शन यूज होते हैं. दिस रिक्वायर अ सैटेलाइट डिश टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द सैटेलाइट. सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए इसको एक सैटेलाइट डिश की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज DSL. इट्स फुल form is digital subscriber line. A DSL uses two-wire copper telephone line. Similarly ये भी क्या करता है, टेलीफोन लाइन यूज होती है इसमें. It allows you to make calls even when you are connected to the internet. आप इससे कॉल भी कर सकते हो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. It is a form of a broadband connection where you have required to pay a monthly fee. ठीक है, ये सिमिलरली
ये आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह होता है, आपको इसके लिए फी पे करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। वायरलेस कनेक्शन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वायरलेस मीन्स बिना वायर्स के। वायरलेस कनेक्शन मेक्स यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ऑफर्स ग्रेट स्पीड। ये आपको क्या करता है, ग्रेट स्पीड प्रोवाइड करता है। इट कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनी लोकेशन दैट कम अंडर दैट नेटवर्क एरिया कवरेज। इट रिक्वायर्स अ वाईफाई मॉडेम टू कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। आप सभी ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने घर में वाईफाई लगवाया हो तो उसकी रेंज सभी रूम्स में आपके सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आती है ना। सो वो कौन सा कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन। मीन्स आपने कोई वायर भी नहीं अटैच की हुई, फिर भी आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। सो इसमें हम वाईफाई का एग्जांपल ले सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट you all are very familiar to this. Mobile internet allow a user to access internet over a smartphone using the network provided by the phone service provider. Clear? जैसे कि 3G स्पीड, 2G स्पीड, 4G स्पीड, आपने जो फोन्स में अपने इंटरनेट कनेक्शंस लिए होते हैं, दैट इज मोबाइल इंटरनेट। लास्ट वन इज हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स आर साइट दैट प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कभी कभी आपने देखा है, आप एक हॉटस्पॉट की फैसिलिटी होती है जिससे कि एक मोबाइल में अगर इंटरनेट चल रहा है तो उसी इंटरनेट की हेल्प से दूसरे मोबाइल में भी हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली क्या करना होता है, अपना हॉटस्पॉट ऑन करना है, ठीक है। देन दूसरे फोन से उस हॉटस्पॉट नेटवर्क को ज्वाइन करना है, उस ज्वाइनिंग के लिए पासवर्ड होता है, ठीक है। सो आप हॉटस्पॉट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट्स, कैफे, होटल्स वगैरह में जनरली यही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। पॉपुलर सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस आप सभी को पता है, मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, उसमें हम वीडियो के साथ साथ फेस टू फेस बात करते हैं। A video conference is a communication that involve exchanging audio and video at the same time between people sitting at geographically different locations. Means अलग अलग लोकेशंस पे जो पर्सन बैठे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो अपने किसी भी रिलेटिव से, किसी भी बिजनेस पर्सन से, किसी भी पर्पस के लिए वीडियो और ऑडियो सेम टाइम पे करना चाहते हैं, तो कौन सी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल जूम ऐप की ले सकते हैं, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, ऑडियो भी सुनता है, वीडियो भी दिखता है। द पार्टिसिपेंट्स कैन व्यू ईच अदर on their monitors as well as they can hear sound over speakers of their laptops or desktop computers. क्लियर? सो बेसिकली इसमें एग्जांपल स्काइप की आ जाएगी, ठीक है, कनेक्ट, ठीक है, ऐसी एग्जांपल्स आ जाएगी एप्लीकेशंस की जिनको यूज करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मींस ऑडियो और वीडियो एट द सेम टाइम। सेकेंड सर्विस है जो चैटिंग। चैटिंग आप सभी को अच्छे से पता है, चैट मीन्स अ चैट इज अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन वन और मोर यूजर्स इन विच मैसेजेस आर एक्सचेंज्ड बैक एंड फोर्थ इन रियल टाइम थ्रू अ चैट सॉफ्टवेयर। किसी चैट सॉफ्टवेयर के थ्रू मैसेज सेंड और रिसीव करना। इसमें आप व्हाट्सएप की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, आप मैसेज सेंड करते हो, ठीक है, रिसीव करते हो, दैट पर्सन जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो आपको रिप्लाई देता है, ठीक है। चैटिंग करने के लिए आपको चैटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि आपको गूगल हैंगआउट्स है, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी फैसिलिटी के साथ आप क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इंटरनेट फ्री कॉल, ठीक है। अगर इंटरनेट की हेल्प से आप चाहते हो फ्री कॉल्स करना, मींस इंटरनेट आपने कनेक्शन लिया हुआ है और उसके साथ आप कॉल करना चाहते हो, जैसे कि आप स्काइप पे कॉल करते हो, वाइबर पे कॉल करते हो, ठीक है। इट लेट्स यू मेक फ्री वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स टू एनीवन। आप कहीं भी किसी को भी फ्री कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड द फोर्थ वन इज ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी को भी कोई मैसेज कंपोज करना चाहते हो, कोई फाइल सेंड करनी है आपने, ज़्यादातर जो वर्क प्लेसेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे ईमेल यूज़ की जाती है, ठीक है।
ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स वेयर द पोस्टल एड्रेस details like name, address, city, state, pin, country, etc. have been replaced by an email address. मीन्स इतनी सारी चीज़ें याद रखने के बजाय ईमेल एड्रेस होता है, आप उस पर्सन का ईमेल एड्रेस जिसको आप मैसेज करना चाहते हो, ईमेल करना चाहते हो, आप उसको कर सकते हो। जो ईमेल एड्रेस होता है वो जनरली ऐसा होता है जैसे कि info@kips.in, मतलब उसमें 2 पार्ट्स आपके होते हैं सेपरेटेड बाय @ ये जो ए वाला साइन है आप अपनी बुक पे देख सकते हो, पेज नंबर 88 पे ईमेल का जो टॉपिक है उसमें आपको फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल www.gmail.com, ठीक है, www.yahoo.com, ठीक है, ऐसी जो हमारी ईमेल साइट्स हैं। अब हमने ईमेल यूज़ कैसे करना है, इसके लिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप जब गूगल फॉर्म पे एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें आपने यूज़ किया था, ठीक है। सॉरी, आप टेस्ट मोज पे 5th क्लास ने टेस्ट मोज पे दिया था। आप ईमेल एड्रेस जैसे आपके पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन है उनमें प्ले स्टोर में होता है, आपने लॉगिन किया हुआ, ठीक है। वी हैव टू सिलेक्ट अ यूज़र नेम, उसके लिए हमें एक यूज़र नेम रखना पड़ता है जैसे कि @.com, ठीक है। और देन प्रोवाइड अ सीक्रेट कोड जिसको हम पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। हर एक ईमेल अकाउंट का अपना अलग पासवर्ड होता है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है, ताकि प्राइवेसी रहे। कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स। कंपोज मीन कैसे ईमेल को टाइप करना है या उसको बनाना है, ठीक है। टू राइट एन ईमेल टू एनीवन वी हैव टू क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन। जब भी आप अपनी मेल खोलते हो साइड पे ईमेल आईडी लॉगिन करते हो, कंपोज का ऑप्शन आता है, ठीक है। कंपोज में जाके आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो, सेंड जिसको आपने भेजना है, ठीक है, जो आपका रिसीवर है उसका ईमेल एड्रेस, एंड देन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सेंड बटन। फिर सेंड बटन पे क्लिक करके आप वो ईमेल है जो सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स क्या होते हैं? एटिकेट सबको पता है, एटिकेट क्या होते हैं? एटिकेट्स होते हैं अच्छी आदतें, ठीक है, अच्छे संस्कार। नेटिकेट्स मतलब नेट वर्ड लिया गया है इंटरनेट से। सो द वर्ड नेटिक्वेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नेट मीन्स इंटरनेट एंड एटिकेट्स मीन्स गुड मैनर्स। Netiquettes can be defined as a set of rules that govern the expectable online behavior of the user. Means आप इंटरनेट पे कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेट पे बिहेव करने के जो एटिकेट्स हैं उनको हम बोलते हैं नेटिकेट्स। द कॉमन नेटिकेट्स, कौन कौन से कॉमन नेटिकेट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर्स कॉपीराइट पॉलिसी। डू नॉट कॉपी द वर्क ऑफ अदर्स विदाउट देयर परमिशन, ठीक है। ये क्या होता है? हम एक अच्छा एटिकेट है कि हमने अगर किसी का कंटेंट देखा, किसी ने कुछ लिखा हुआ है या कुछ भी पोस्ट किया हुआ है, हम उसको कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। अवॉइड sarcasm, डू नॉट इंक्लूड sarcastic एंड इंसल्टिंग कमेंट इन योर कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हो इंटरनेट पे, कभी भी इंसल्टिंग वर्ड यूज नहीं करने, ठीक है। उसको शेम फील नहीं कराना, ठीक है, या उसको इंसल्टेड फील नहीं कराना जिस भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो। ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ करवाना चाहते हो, ठीक है। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें वैसा व्यवहार आपको लोगों के साथ करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, ठीक है, जो दूसरों की प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करो। डू नॉट रीड एंड शेयर अदर्स इंफॉर्मेशन सच एज देयर ईमेल आईडीज, फोन नंबर, फोटोग्राफ विदाउट सीकिंग देयर परमिशन। किसी भी की भी परमिशन के बिना उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर और फोटोग्राफ देखना अच्छी बात नहीं है। नो स्पैम, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स एंड फ्लड ऑफ यूजर्स इनबॉक्स विद अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स और मैसेजेस। कभी भी किसी को अनवांटेड, जो आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई भी मैसेज सेंड नहीं करना, या बल्क में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, कोई र्यूमर, कोई भी अफवाह नहीं फैलानी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सोशल नेटवर्किंग नेटिकेट। जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करें, सोशल नेटवर्किंग मीन्स
रिलेटेड टू सोसाइटी। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, ये ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन को आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। सो इन साइट्स को यूज करते हुए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऑलवेज चेक द यूजर्स प्रोफाइल बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखो, अगर आप उसका आपके कोई नोन है तब उसको ऐड करो, अदरवाइज उसको इग्नोर करो। यू नेवर नो विच अननोन पर्सन मिसयूजेस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एम्बैरेसेस यू। आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन यूज कर सकता है, किस तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड वन इज यूज प्राइवेसी फीचर, हमेशा प्राइवेसी लगा के रखो, ठीक है। While using a social networking website, ensure that your personal information is not displayed publicly, ठीक है। अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली कभी पोस्ट नहीं करना। Rather a particular set of people, अगर आप चाहते हो तो कम पीपल जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है उनको आप शो कर सकते हो, क्लियर। सो हमेशा प्राइवेसी है जो वो लगा के रखनी है। नेक्स्ट इज डोंट पोस्ट पिक्चर्स ऑफ अदर, किसी और की पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, आप उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड एटिकेट। कमेंट वाइजली, अगर आपने किसी को कमेंट करना है तो समझदारी से कीजिए, जो उसको एम्बैरेसेस फील ना कराए। अच्छे कमेंट कीजिए जो आप चाहते हो कि लोग आपको करें। नेवर प्रमोट एनीथिंग दैट इज बायस्ड और ऑफेंड्स एन इंडिविजुअल और कम्युनिटीज डिग्निटी, किसी की भी शान के खिलाफ आपको कोई कमेंट नहीं करना। रिपोर्ट एब्यूज, रिपोर्ट एब्यूज का मतलब ऑलवेज रिपोर्ट टू योर एल्डर्स और पेरेंट्स इफ समवन हरासेस एंड थ्रेटन्स टू यू। अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे डरा रहा है या एम्बैरेस फील करा रहा है, हरास कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे पहले अपने बड़ों को या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज ईमेल नेटिक्वेट्स। ईमेल यूज करते हुए आपको कौन कौन से रूल्स है जो फॉलो करने हैं। सब्जेक्ट लाइन, यूज प्रिसाइज एंड ब्रीफ सब्जेक्ट लाइन विच कैरीज द मेन आइडिया एंड द मोटिव बिहाइंड द मेल। एक सब्जेक्ट देना है, ठीक है, जिससे कि रिसीवर को पता चल जाए कि ये मेल किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। यूज प्रॉपर सैल्यूटेशंस, मेक श्योर योर ईमेल एड्रेस include a courteous greetings with and closes with your name and signature। जब भी ईमेल स्टार्ट करनी है अच्छे ग्रीटिंग से करनी है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग डियर वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, और लास्ट में अपना नेम और सिग्नेचर जरूर देने हैं। कंसाइज मैसेज, कंसाइज मैसेज मीन्स छोटा मैसेज टाइप करना है, ना कि बहुत बड़े बड़े पेजेस मीन्स वर्ड्स डिफिकल्ट यूज करने हैं, या फिर बहुत बड़ा ऐसे की तरह आपने ईमेल टाइप करनी है। ट्राई टू बी प्रिसाइज एंड नॉन रेपिटेटिव वाइल यू ड्राफ्ट एन ईमेल। द मैसेज शुड बी टू द पॉइंट, जो मैसेज है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, और टॉपिक के जो भी टॉपिक है उस ईमेल सेंड करने का, उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, उससे परे नहीं होना चाहिए। चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, ठीक है, ये तो पता ही है कि अगर आपने टाइप किया तो प्रॉपर उसके स्पेलिंग ग्रामर वगैरह चेक कर लो। ऑल कैप्स लॉक, नेवर टाइप योर मैसेज इन अपर केस। अपर केस मीन बड़ी ABC में, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, ये कभी भी आपने अपना जो मैसेज है वो पूरा कैपिटल लेटर्स में टाइप नहीं करना। ऑटो रिस्पॉन्डर्स टेक टेम्पररी केयर ऑफ योर ईमेल while you are away from your computers. It automatically convey the message on your behalf and saves the time of the recipient. Clear? Use of BCC feature. Make use of BCC message while sending messages to मल्टीपल पीपल। जब आपने मल्टीपल पीपल को मैसेज सेंड करना है तो आपने इस फीचर का यूज करना है। टेक अ लुक बिफोर सेंडिंग अ मैसेज। जब आपने ईमेल टाइप कर लिया, सारा कुछ ध्यान में रख लिया, स्पेलिंग ग्रामर अच्छे से देख लिया, आपके जो कैपिटल लेटर्स है वो भी आपने ध्यान में रख लिए, स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान रख लिया, ठीक है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपने एक बार उसको केयरफुली देखना है बिफोर सेंडिंग। सेंड करने से पहले अपनी ईमेल को अच्छे से एक बार टैली करना है, गो थ्रू होना है। सो दीज आर बेसिकली द ईमेल नेटिकेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इन योर चैप्टर
So read the chapter from the book and watch this video to understand the different terms of this chapter.